My name is Dr. Asad Akram Farooqi. I'm a neurologist at Patel Hospital, and I'm here with my colleagues. Two of them are neurosurgeons and another one is a neurophysician. So we're all here as panelists from neurology and neurosurgery to give awareness as to what facilities are available and what are the common diseases that we treat at Patel Hospital. So regarding stroke, the important thing is that every minute counts. जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले हमारी कॉलीग ने बताया कि हम लोग अक्सर सुनते हैं पेशेंट को फालिज हो गया और नेक्स्ट डे पता चल रहा होता है जी हम लोग किसी अस्पताल लेकर गए और ये प्रॉब्लम पेश आ रही थी, वो प्रॉब्लम पेश आ रही थी. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एवरी मिनट काउंट्स, बिकॉज स्ट्रोक को रिवर्स करने के लिए जो मेडिकेशंस या जो प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं दे आर टाइम बाउंड. एक विंडो है जिस विंडो के अंदर वो प्रोसीजर या वो इंजेक्शन दिया जा सकता है एंड उसको इंस्टीट्यूट किया जा सकता है. सो ideally we should take the patient to the emergency department as soon as we feel something is going on. So worldwide it is a major cause of morbidity and mortality, especially among our population. It is a disease in which the arteries get blocked and the oxygen supply is depleted. ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आगे तक नहीं पहुंच पा रहा होता है एंड ब्लड फ्लो ना पहुंचने की वजह से जिस भी एरिया को ब्लड नहीं मिलता दैट एरिया डाइज आउट. सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्ट्रोक. इसके अलावा अदर टाइप्स भी हैं. Pakistan suffers from a high prevalence of stroke because of risk factors like obesity, hypertension, lifestyle. 1/3 of the people who suffer from stroke develop post-stroke cognitive impairment. According to the World Health Organization, stroke, it is a rapidly developing clinical signs and symptoms of focal or global disturbance of cerebral function with symptoms lasting for 24 hours or longer with no apparent cause other than that of vascular origin. Meaning usually the symptoms are present for at least 24 hours. If it reverses before 24 hours, the label changes. Then it is labeled as a transient ischemic attack. So stroke ka deficit, it needs to persist for a minimum of 24 hours. Stroke के बहुत सारे types हैं, but the common types are an ischemic stroke and a hemorrhagic stroke. Ischemic stroke के अंदर there is blockage of a vessel, a large vessel, and blood flow distal to it is disrupted. Whereas in a hemorrhagic stroke, the vessels rupture and blood is dissipated into the brain parenchyma. However, around 87% of the strokes are ischemic in origin. This is showing the same thing. इसमें blockage है. There is blockage, and on the contralateral side, the other side, it's showing a hemorrhage. The blood vessel has ruptured and it's showing a hemorrhage. Stroke is the most common form of stroke, accounting for approximately 85%. This type of stroke is caused by narrowing of the vessels. ये thrombosis की वजह से भी हो सकता है and sometimes clot dislodge होता है heart से, उसकी वजह से भी हो सकता है. Usually it is picked up on a CT scan. However, मैंने अभी यहाँ पे एक MRI की image लगाई है to show कि on an MRI diffusion weighted image which shows a stroke within minutes. CT के अंदर में इमेज में स्ट्रोक नज़र आने के अंदर में इट मे टेक अप टू 6 आवर्स 12 आवर्स डिपेंडिंग ऑन कि छोटा है या बड़ा है. वेयर एज डिफ्यूजन वेटेड इमेज, जो ब्लैक वाला इमेज है ऊपर वाला, इट विल शो अ स्ट्रोक विद इन मिनट्स. 5 मिनट्स के अंदर अंदर नज़र आ जाएगा एंड इट शोज अप एज अ वेरी ब्राइट सिग्नल. ऊपर वाले इमेजेस में वाइट कलर का सिग्नल होता है. इट्स वेरी हार्ड टू मिस. ठीक है, अगेन शोइंग द सेम थिंग. ब्लॉकेज हो रही है. ब्लॉकेज इज़ यूजुअली ऑफ 2 टाइप्स. या तो थ्रोम्बोसिस है कि वेसल के अंदर में ही कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो के वेसल छोटी हो रही है, या दूसरा टाइप है एम्बोलिज्म कि बना बनाया क्लॉट, जमा हुआ खून का एक क्लॉट आया है और वो आके वेसल के अंदर फंस गया है. यूजुअली ये 2 टाइप्स होती हैं जो कि इस्कीमिक में होती हैं. अगेन
स्ट्रोक के अंदर जिस एरिया की वेसल क्लोज होगी उस एरिया के सिम्टम्स आएंगे. अगर विजन के एरिया की वेसल क्लोज होगी, विजन के सिम्टम्स आएंगे. लैंग्वेज की एरिया की होगी, लैंग्वेज के आएंगे. मोटर एरिया की होगी तो मोटर के आएंगे. इंट्रासेरेब्रल हेमरेज रेफर्स टू ब्लीडिंग डायरेक्टली इनटू द ब्रेन पैरेन्काइमा. कोई वेसल रप्चर होती है और ब्लड डायरेक्टली ब्रेन के अंदर आता है. दी अदर टाइप इज अ सब अरेक्नॉइड हेमरेज, जिसके अंदर में ब्लीडिंग होती है और ब्लड ब्रेन के अराउंड आता है, नॉट इन बट अराउंड. दिस इज अ ब्लीड. सीटी के अंदर में ब्लीड शोज अप एज अ वाइट इमेज. सो दिस इज hemorrhage intraparenchymal, this is around, this is a subarachnoid hemorrhage. वो वाले स्ट्रोक्स या वो वाले सिम्टम्स जो कि विद इन 24 आवर्स रिवर्स हो जाते हैं, दे आर लेबल्ड एज TIA. So TIAs are different from the aforementioned kinds of stroke because the blood flow is interrupted but briefly. After a while it is restored. TIAs should be regarded as a medical emergency because although the symptoms have reversed, but they can occur again and it can change into a complete stroke. So TIAs are an emergency. The patient should not be sent home. They should ideally be admitted for a workup. So what are the common risk factors for a stroke? The risk factors can be divided into factors that are modifiable and non-modifiable. Non-modifiable के अंदर में there is nothing that we can do, like age. We can't stop aging. Gender. मुश्किल है हमारी सोसाइटी में चेंज हो सके, लेकिन gender. Race. Nobody can change the race. Ethnicity. And if the family has a history of stroke. Family history of stroke के अंदर usually it is counted as if it happens before the onset of 40 years or 50 years. इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर में कुछ ऐसी जीन्स मौजूद हैं जो कि स्ट्रोक के लिए ज़्यादा फेवरेबल हैं, या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म ऐसे चेंज हुआ है कि ब्लड इज़ थिकर एंड द चांसेस ऑफ स्ट्रोक आर मोर. बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज़ वी आर इंटरेस्टेड इन द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. मॉडिफाइबल वो हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं. इससे ट्रीट करने से स्ट्रोक की प्रिवेलेंस इंसिडेंस कम हो सकती है, लाइक हाइपरटेंशन. इफ हाइपरटेंशन इज ट्रीटेड, चांसेस ऑफ स्ट्रोक डिक्रीज. कार्डियक डिजीजेस, जिसके अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसरिदमियास पेशेंट के ट्रीट हों, एट्रियल फिब्रिलेशन ना हो. डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, illicit drug use, oral contraceptives, all of these things predispose to stroke. So these are all factors which are modifiable. So how to suspect a stroke and what to do? So जैसा कहा कि every minute counts. So ideally look at the mnemonic. Be fast. Back. Be fast. B stands for balance. Patient will have cerebellar stroke होगा, patient will have imbalance, difficulty in walking. Eyes, the patient will have visual blurring or patient will feel as if a part of the vision is cut off. कोई एक हिस्सा है जिसमें नज़र नहीं आ रहा है. F stands for face. फेशियल ड्रूपिंग होगी, एक साइड का चेहरा काम कर रहा है, एक साइड का चेहरा लैक्स है, बिल्कुल ढीला हुआ है. आर्म्स नहीं उठ रहे होंगे, एक हाथ उठ रहा है, एक हाथ नहीं उठ रहा है, या दोनों हाथ उठ रहे हैं और एक हाथ बार बार गिर रहा है. S स्टैंड्स फॉर स्पीच, बोलने में स्लरिंग हो रही है, मुश्किल हो रही है, या पेशेंट बोल ही नहीं रहा है. एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम. टाइम का मतलब ये है कि द फैमिली नीड्स टू नोट डाउन when did the symptoms start and when did I last see the patient normal. ठीक है. The common symptoms in stroke के, the diagnosis is based on history, examination and
The two of them do not obviate the need for a radiological exam. रेडियोलॉजी होना लाजिम है. अक्सर लोगों का सवाल ये होता है, डॉक्टर साहब आपका तजर्बा होगा, आप क्या दवाई देना चाहेंगे? तजर्बे की बेसिस पे दवाई नहीं होती. हमेशा इमेजिंग इज़ नीडेड टू स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रोक. Again, this is a CT brain plane. This one is showing a large ischemic infarct, and this one is showing an infarct on a MRI, diffusion weighted image पे. Usually lab workup है जो कि हम ischemic stroke के अंदर करवाते हैं. It is done for almost all patients. And treatment के अंदर में for patients who present with an ischemic stroke within the first 4.5 hours, इंजेक्शन शुरू के 4.5 घंटे में लग सकता है मैक्सिमम, नॉट आफ्टर दैट, इज गिवन इन द ER. What the injection does is, it is a clot buster. It breaks up the clot, dissolves the clot, it increases the chances of recovery. It does not mean it will reverse a stroke completely, because जितनी देर blockage रही है उतने एरिया में जो dead हो गया है एरिया, that area is dead. But it will decrease the chances of progression. Again, it is showing the mechanism of action of the TPA injection, the clotbuster injection. Yeah. Sort of. 4.5 hours के बाद ये होता है कि पेशेंट उस विंडो फ्रेम से गुजर गया जिसमें इंजेक्शन कैन बी गिवन सेफली. बिकॉज होता क्या है, जब एरिया इन्फाक्ट हो जाता है तो वेसल्स आर नाउ सॉफ्ट, लीकी. वेसल्स अब कैसी हैं? सॉफ्ट हैं. अगर के पीछे से प्रेशर बढ़ा हुआ होगा या आपने क्लॉट को डिसरप्ट कर दिया और एकदम से नॉर्मल ब्लड फ्लो रिस्टोर हो गई, तो जिस एरिया में इन्फाक्ट है वो एरिया में वेसल्स बर्स्ट हो जाएंगी और ब्लीड हो जाएगा. सो इन्फाक्ट विल चेंज इनटू अ हेमरेजिक कन्वर्जन. The other treatment option that is available is, if a large vessel is blocked, we can go in and take the clot out. कोई बड़ी शरियान ब्लॉक्ड है जहाँ तक के कैथेटर की रसाई हो तो कैथेटर जाके उस क्लॉट को निकाल कर आ सकता है. ठीक है. So this is simply showing कि it's not a one-man job. We need neurologists, we need physiotherapists, we need occupational therapists, we need dietitians, we need speech therapists, because stroke, once it happens, needs a holistic approach. चीज़ें जो प्रिवेंशन के लिए आपको मेंशन करी थी. कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आस्क. कोई क्वेरीज हो तो प्लीज बताएं. या मेन कॉज से क्या मतलब है? देखो, स्ट्रोक यूजुअली जैसा आपको कहा दो टाइप्स का है ब्रॉडली. वन इज ब्लॉकेज, वन इज ब्लीड. ब्लीड मोस्ट कॉमनली, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट कॉमनली उन लोगों में होता है जिनके अंदर में हाइपरटेंशन हो या कोलेस्ट्रॉल हो एंड डायबिटीज़ हो एंड वेसल्स उनकी सॉफ्ट हो गई हो बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन. जब प्रेशर्स कंट्रोल नहीं होते, द वेसल्स बर्स्ट. दिस हैपन्स इन मे बी 15% ऑफ द केसेस. 85% के अंदर में इट इज़ एन इस्कीमिक स्ट्रोक. इस्कीमिक के अंदर में यूजुअली इट इज़ आइदर एम्बोलिक, कि बना बनाया खून का एक क्लॉट निकला है हार्ट से या किसी वेसल से और वो जाके वेसल में फंस गया है. दिस यूजुअली हैपन्स जब पेशेंट को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक डिजीज़ हो, ऑलरेडी EF लो है, ब्लड पंप नहीं करता, या पेशेंट का रिदम ख़राब है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, पंप तो कर रहा है लेकिन पंप का रिदम जो है ना वो प्रॉपर नहीं है. तो जितनी देर प्रॉपर नहीं होता उतनी देर अंदर ब्लड जमा होता रहता है, क्लॉट निकलता है. या फिर थ्रोम्बोसिस होगा. थ्रोम्बोसिस में ये है कि पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वेसल का अगर डायमीटर इतना होना चाहिए तो कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर की वजह से वो छोटा होते 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 इतना छोटा हो गया कि अब वो आगे ब्लड ही अलाउ नहीं कर रहा. ठीक है. सॉरी, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन घर की टेंशन? हाइपरटेंशन मेनली पूछ रहा हूँ. हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, राइट? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से. या प्लीज.
सर आपने जो कहा था कि स्ट्रोक रिवर्स हो सकता है बेसिकली, तो वो पोटेंशियली कोई हार्म कॉज करेगा रिवर्स होने से पहले, या रिवर्स अगर हो भी गया तो वो कोई हार्म कॉज कर रहा होगा बॉडी को? आई एम सॉरी, पूरा वापस से पूछोगे? सर आपने एक टाइप बता दी स्ट्रोक की, इसमें वो रिवर्स हो जाएगा, टेम्परेरी तौर पर होगा, रिवर्स हो अच्छा, जाएगा। टी आई है, हाँ जी, हाँ हाँ। तो उसमें कोई हार्म कॉज करेगा वो ओवरऑल बॉडी के ऊपर? हाँ बेटा, जैसा बताया, रिवर्स हो गया है, कोई क्लॉट आया था जो फंस गया एंड डिसरप्ट हो गया, या वेसल की वॉल क्लोज ऑफ हुई थी और वो वापस से खुल गई है, इस वक्त कोई सिम्टम्स नहीं है, इट इज़ बैक टू ज़ीरो, ठीक है। बट इट इज़ एन इमरजेंसी, इट मीन्स इट कैन हैपन अगेन, यू नीड टू एडमिट द पेशेंट एंड फाइंड द कॉज बिफोर इट हैपन्स अगेन। अमूमन ये रिदम की ख़राबी की वजह से होता है कि जी रिदम आगे पीछे हो रहा है, तो ये चीज़ देखनी होती है कि अगर रिदम ख़राब हो रहा है तो इमीडिएटली वो मेडिसिन इंस्टीट्यूट करें जिससे कि क्लॉट बनने के चांसेस कम हो जाएं। लेकिन अगर रिवर्स हो गया तो इस वक्त पेशेंट इज़ एट ज़ीरो डेफिसिट। जी, आपने टीपीए के बारे में बताया था कि वो क्लॉट को ब्रेक कर देता है, तो हैव यू सीन एनी केस कि उस टीपीए ने उस क्लॉट को ब्रेक किया हो और आगे जाके उसने कोई ब्लॉकेज कर दी हो, या कितने टाइम में ऐसा होता है कि वो अगेन ब्लॉकेज करता है? अच्छा, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ये बताना भी बहुत मुश्किल है। बट होता ये है कि जब क्लॉट डिसरप्ट होता है ना, तो वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो टूट के आगे जाता रहता है एंड वो आगे मिक्स होके ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ से निकलेगा तो आगे वाली में फंस जाएगा, ठीक है। और अगर वो यहाँ से निकलेगा तो आगे वाली में ऑलरेडी ब्लॉकेज हो चुकी है, जब पीछे ही नहीं हो रही तो आगे तो ऑब्वियसली ब्लॉकेज हो चुकी है। हमें टीपीए से ख़तरा ये होता है कि टीपीए देने से ब्रेन में ब्लीडिंग ना हो जाए, बिकॉज वो हर किस्म के ब्लड को कम कर देता है, पतला कर देता है। तो जिस जगह पे स्ट्रोक हुआ है वहाँ की वेसल्स ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट हैं कि अगर वो फटी तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी। इसको एग्जांपल ऐसा समझो, किसी टीपीए देते हैं उनको नोज ब्लीड भी स्टार्ट हो जाती है, गम ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर नॉर्मल एरिया के अंदर में ब्लीडिंग हो रही है तो सारे स्ट्रोक वाले एरिया में भी चांसेस होते हैं, बट इट हैपन्स इन अ वेरी माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, अराउंड 5% 6% में। ठीक, थैंक यू।